آج کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے مختار ہیں۔ اس پر اللہ کے قرآن کی پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دو اے میرے اللہ، ملک کے مالک، یہاں ملک سے مراد پوری دنیا ہے، کیونکہ اللہ سے اگر یہاں کا مراد لیا جائے تو اللہ صرف پاکستان کا مالک تو نہیں ہے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اے میرے اللہ، اے ملک کے مالک۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، جب اس کا اگلا حصہ پڑھوں گا تو آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے اذن سے مختار بنایا ہے۔ فرمایا، اے میرے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ یعنی سادہ سا مفہوم یوں لے لیتے ہیں، اے دنیا کے بادشاہ، تو بادشاہ ہے دراصل، لیکن جسے تو چاہتا ہے دنیا کی بادشاہی اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں تو اتنا آیا نا کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ اعتراض اٹھائے، جو اعتراض اٹھاتے ہیں حضور کے مختار ہونے پر، تو یہ اعتراض اٹھائے کہ یہاں یہ تو والے واضح الفاظ میں آیا ہی نہیں، یہاں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، اللہ آیت نازل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے محبوب تم کہہ دو اے ملک کے مالک، یعنی اے دنیا کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہاں یہ تو نہیں آیا کہ میں نے اپنے محبوب کو بادشاہ بنا دیا، مختار بنا دیا۔ تو اب اگلی آیت، اس سے اگلا پارہ ہے، یہ تیسرے پارے میں ہے۔ اب آگے سورہ نساء کی آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر فیصلے میں تجھے اپنا حاکم، تجھے اپنا بادشاہ نہ مان لیں۔ یہاں واضح اعلان فرما دیا، اگلی صورت ہے سورہ نساء میں، فرمایا محبوب یہ تب تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ ہر فیصلے میں تجھے اپنا حاکم، تجھے اپنا مالک، تجھے اپنا بادشاہ نہ مان لیں۔ اچھا، صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا تھا یا انہیں کچھ طلب ہوتی تھی، یا کفار اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں دکھاتے تھے، تو صحابہ کرام آگے سے فرماتے تھے اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ جب وہ کوئی طلب کرتے، جب وہ کوئی خواہش کرتے، تو صحابہ کرام کیا فرماتے؟ اللہ ہمیں اپنے، سارے بولیے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا وقال سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے تم یوں کہا کرو، ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ فرمایا تم یوں کہتے ہو اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، یوں کہو ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ اب آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 7273 نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر حدیث مبارکہ کا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا
میں जामे कलाम देकर भेजा गया हूं और मेरी रोब के साथ मदद की गई है और मैंने खुद ख्वाब के अंदर देखा है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां दी, बल्कि मेरे दोनों हाथों पर रख दी गई है। ये नहीं कि किसी और ने देखा है, नबी का ख्वाब भी वही होता है, नबी का ख्वाब भी वही इलाही होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कोई और देखता तो बात और थी, फरमाया मैंने खुद ख्वाब के अंदर देखा है अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे दोनों हाथों पर रख दी है। मैं इन आयतों जो पढ़ रहा हूं और इन हदीसों की तशरीह में जाऊं तो कई घंटों की गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमारा वक्त महदूद है, दिन भी महदूद है, उन्वानात बहुत ज्यादा है। आई हदीस मुबारका दलाइल नबुव्वा लिल बहकी, हदीस नंबर 163, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजमाऊ इस्मी व कुन्यती अना अबुल कासिम अल्लाहु यर्ज़ुक़ु व अना अक़सिमु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कुन्नियत और मेरा नाम जमा न करो। अब अगले मजे की रिवायत है, यहां से हमारा अकीदा भी आ रहा है और इतना सुकून देगी आपको रिवायत का ये हिस्सा, मेरी कुन्नियत और मेरा नाम जमा ना करो। फरमाया मैं अबुल कासिम हूं, मैं अबुल कासिम हूं, अल्लाह रिज़्क देता है, मैं तकसीम करता हूं। हुजूर फरमाते हैं अना अक़सिमु अल्लाह यर्ज़ुक़ु, अल्लाह रिज़्क देता है, मैं तकसीम करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बहुत सारी हदीसें मुबारका हैं इस पर, एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी लंबी हदीस मुबारका है, लेकिन इससे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, कमाल की दलील मिलती है। बहुत बड़ी हदीस है और यह है जी सुनन दारमी शरीफ, हदीस मुबारका का नंबर है जी 32। अन अबी हुरैरा अन अबी क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब क़ामा फ़अताल अल-क़ियामा फ़क़ाना यशुक्कु अलैहि क़ियामु। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमाते तो देर तक हुजूर खड़े रहते। सहाबा से सरकार मस्जिद नबी शरीफ के शहर में खिताब फरमाते और देर तक हुजूर खड़े रहते और आपका खड़ा रहना आप पर मुश्किल गुजरता, क्योंकि ज्यादा देर गुजर जाती और नफीस बदन था। मैंने एक हदीस मुबारक, उसकी अरबी इबारत तो मेरे ज़हन में नहीं है, मैंने वैसे पढ़ी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हम सलाम लेते थे ना, सलाम, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर का जो गोश्त था ना, जो जिल्द मुबारक थी, रूई से ज्यादा नरम थी। और फरमाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से जब हम सलाम लेके वापस हटते ना, तो हुजूर के दस्ते मुबारक से कस्तूरी से ज्यादा खुशबुएं आ रही होती, इतना नरम। और फरमाते हैं शदीद गर्मी का मौसम होता और जब हम हुजूर का सलाम लेके वापस लौटते, ठंडे पहाड़ों पर जो ठंडी बर्फ पड़ती है ना, उससे भी ज्यादा ठंडे हाथ होते थे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब लोग गर्मी में तड़प। ये बदन था मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम। तो अब यहाँ अपनी हदीस मुबारक अपने मौजू की तरफ आते हैं। फरमाया हुजूर जब ज्यादा देर खड़े रहते तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अतहर पर तकलीफ दे गुजरता, मुश्किल के लिए गुजरता। तो अब क्या हुआ, फरमाया एक सहाबी ने एक अमल किया, उसने जाके खजूर का एक तना काट के लाए, वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर गाड़ दिया गया। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से खिताब फरमाते, खिताब करते करते जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदन अतहर पर थकन के आसार महसूस फरमाते तो हुजूर उस तने से टेक लगा लेते। वो जो खजूर का तना काट के लाया गया था ना, हुजूर उसकी टेक लगा लेते। वक्त होता तो मैं इसकी पूरी अरबी पढ़ता, आपके कलेजे में ठंड पड़ती। कहा सरकार उसकी टेक लगा लेते, फिर हुजूर खिताब फरमाते रहते। एक दिन ऐसा आया, एक शख्स जो सहाबी रसूल था, देहात से आया था, उसने कहा अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे यकीन हो जाए, सुनिएगा, अगर मुझे यकीन हो जाए कि हुजूर को खुशी मिलेगी, हुजूर मेरे इस अमल पर खुश होंगे, मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे, तो मैं लकड़ी का एक मिंबर बना लाऊं। अल्लाह अकबर, मैं लकड़ी का एक मिंबर बना लाऊं जिस पर हुजूर जलवा फरोज हो जाया करें,
सरकार बैठ जाया करें और हुजूर का दिल करे तो उस पर खड़े हो जाया करें, दिल करे तो बैठ जाया करें, सरकार उस पर बैठकर खिताब फरमाया करें। ये बात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तक पहुंची। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ उस सहाबी को। उसको बुलाया गया, हुजूर ने खुशी का इजहार फरमाया और फिर फरमाया जाओ बना लाओ, उसके 3 स्टेप हो या 4 दर्जे हो। वो सहाबी गए, उन्होंने वो मिंबर तैयार किया, तैयार करके लाके जब मस्जिद नबी शरीफ में रखा तो क्या ही खूबसूरत मंजर था, वो रख दिया। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दूसरे दिन जब सहाबा कराम से खिताब करने के लिए आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे आकर उस मिंबर पर जलवा फरोज हो गए। सरकार ने खिताब शुरू किया, सहाबा बड़े मजे से खिताब सुन रहे हैं, यकदम किसी के रोने की आवाज आई। कैसे रोने की आवाज आई? यहां हदीस मुबारका में अल्फाज हैं कि इस तरह रोने की आवाज आई जैसे ऊंटनी का बच्चा बिछड़ जाए तो ऊंटनी बुलंद आवाज से रोती है। हमारे घर में जब हम छोटे थे एक ऊंट भी था, आज 3 ऊंट हैं अल्लाह के फजल से, एक ऊंटनी भी थी। तो ऊंटनी का बच्चा जब थोड़ा सा दूर जाता था, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है कि ऊंटनी की आवाज कई मर्दों की आवाज मिला दी जाए तो ज्यादा होती थी। इस अंदाज में मोहल्ले में आवाज जाती थी। तो फरमाया वो ऐसे आवाज रोने की आई जैसे एक ऊंटनी का बच्चा बिछड़ जाए तो वो ऊंटनी रोती है। हजरत बुरैदा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, जब यार कमाल है, हदीस मुबारका में कमाल है, इश्क वालों के लिए कमाल है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने खिताब बंद किया, खिताब रोक दिया। अच्छा, सहाबा फरमाते हम देख रहे हैं कि रोने की आवाज किधर से आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे, सरकार अलैहिस्सलाम आए और वो जो खजूर के तने से अरसा गुजर गया था, हुजूर उसकी टेक लगा के खड़े होते थे, सरकार ने उसको अपने दोनों बाजुओं में ले लिया। सरकार उस खजूर के तने को हौसला दे रहे हैं, उस खजूर के तने को सरकार हौसला दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। सहाबा फरमाते अचानक रोने की आवाज बंद हो गई, रोने की आवाज बंद हो गई। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका के अल्फाज आते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद सुनी और उसको हौसला दिया। और फिर अब आया है मेरा मौजू, जिस मौजू के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस मुबारका पढ़ी है, जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने इज़्न से मुख्तार बनाया है। सरकार उस खजूर के तने से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अगर तेरा दिल चाहे, अगर तू इख्तियार करे, अगर तेरी मर्जी हो तो मैं तुझे उसी जगह पर दोबारा उगा दूं जहां से तुझे काट के लाए थे। इससे बड़ा इख्तियार क्या होगा यार? कटा हुआ तना है, कई महीनों तक वो मस्जिद नबी के सियान में वैसे ही गाड़ा रहा, वो तो सूख गया था, वो तो टेक लगाने के मामलात अदा कर रहा था। फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तुझे उसी जगह पर दोबारा उगा दूं जहां तू पहले था। अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत के अंदर उगा दूं। मैं कहां से लाऊं इससे तगड़ी हदीस, इससे तगड़े सबूत कहां से लाऊं? ये खुद सरकार फरमा रहे, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत के अंदर उगा दूं, तुम वहां जाओ, तुम उस जन्नत यानी उसकी नहरों से, उसके चश्मों से पानी पियो और तुम्हारी परवरिश अच्छी हो और तुझ पर फल लगे। फयकुला औलियाउल्लाहि मिन समारतिका व नखलिका फअलतु। फरमाया तुझे वहां जन्नत की नहरों से पानी मिले, तेरी वहां परवरिश अच्छी हो, तुझ पर फल लगे और अल्लाह के वली आकर तेरा फल और खजूरें खाएं। अल्लाह के वली आकर तेरा फल और खजूरें खाया करें। हजरत बुरैदा फरमाते हैं मैंने खुद सुना मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए, वाह यकूलो लहू नअम फअलतु, नअम फअलतु। मैंने खुद सुना सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं करता हूं, हाँ मैं करता हूं 2 मरतबा। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह ये क्या मामला है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसने पसंद किया जन्नत में मुझे उगाया जाए तो हमने इसे उगा दिया। अजीजा ने गिरामी कदर, इससे बड़े सबूत क्या? जन्नत एक तना है, वो खुश्क हो गया है, हुजूर उससे पूछ रहे हैं, फरमाया जहां से काटा गया था वहां तेरा दिल करे तो वहां उगा दूं,
اگر تیرا دل کرے تو تجھے جنت میں اگا دوں, وہاں تو جنت کی نہروں سے پانی پیے, وہاں تجھ پر پھل لگے, اور پھر جنت کے اندر اللہ کے ولی آ کے تیرا پھل کھائیں. سرکار فرمایا نام اس نے, ہاں میں نے کر دیا. یا رسول اللہ کیا کر دیا؟ فرمایا اسی نے جنت میں اگنا پسند کیا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو ایک شخص آیا, نام تھا اس کا نصر بن عاصم, اور اس نے آ کے کہا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, 2031 نمبر ہے, چلو میں عربی بھی مختصر ہے تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. وان نصر بن عاصم ان رجل منهم انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم على انه لا يصلي الا صلاتين فقابل ذلك منه. یہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. اب نمازیں 5 پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے, آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں 2 نمازیں پڑھوں گا. شخص خود کہتا ہے, وہ کہتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس بات کو قبول کر لیا, اور یہ اختیار بھی اللہ کے نبی کے پاس تھا. عزیزان گرامی قدر, آج کا ہمارا جو عنوان تھا یہی تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے اذن سے مختار بنایا ہے, اور یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنا مختار بنایا ہے.